We are doing exercise 30.1. हम डिस्कस कर रहे हैं और हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किए थे. Today we will discuss the question number 8. 8 आपको क्या कह रहा है? A door from that 1 meter is fitted in a wall. आपके पास एक वॉल है, उस वॉल के अंदर आपने 2 मीटर एक डोर को फिट किया हुआ है. इस तरह से यहाँ पर डोर है, ये 2 मीटर एक साइड 2 मीटर है और एक 1 मीटर है. और जो हमारी ये वॉल है, इस वॉल की जो लेंथ ऑफ ब्रेड that is 4.5 meter and 3.6 meter. Length is 4.5 meter and breadth is 3.6 meter. You have to whitewash this remaining part and you have to find the cost of whitewashing this remaining part. What we have to do? First of all, we will calculate the area of the wall which we have to whitewash. Then actually there is a two rectangle. ये वाला बड़ा वाला rectangle है, that is one, L is 4.5 meter. Breadth is 3.6 meter. Area क्या है इसका? Area is L into B. 4.5 into 3.6. Area से calculate करेंगे. What will we get? 16.2 meter square. This is the area of a wall. Area of wall is equal to 16.2 meter square. Got it? Now we will calculate the area of a door. Area of a door is equal to small l into small b, which 2 into 1, that is 2 meter square. अब हमें डोर पे वाइट वॉश नहीं करना है, हमें वॉल पे वाइट वॉश करना है. इस डोर के एरिया का छोड़ देना है. अब टोटल एरिया से हमें डोर का एरिया माइनस कर देना है. तो एरिया ऑफ द गिवन पार्ट which we have to white वॉश. जिसको हमें वाइट वॉश करना है उसका एरिया निकालना है. दैट क्या होगा कि पूरे कंप्लीट एरिया में से 60.2 से हमें 2 मीटर स्क्वायर को माइनस करना है. दैट विल बी 4.2 मीटर स्क्वायर. ओके. Cost of whitewashing is 1 minute, but 1 minute students. अब दिख रहा ऊपर का टॉपिक बस कोशिश कर रहा हूँ. 2 दाने अब पहले असिस्टेंट पाउस कर भी देख सकते हैं. Now, cost of whitewashing 1 meter square. 1 meter square area is cost is given that 1 meter square is rupees 20 and cost of whitewashing 14.2 meters square will be 20 into 40.2. We will calculate here 20 into 40 2 by 10 280 284 rupees. That is the complete cost.
Okay, students, we will discuss this question again. The question is that a wall is given in which length is 4.5 centimeter and depth is 2.6 centimeter. Reflection of this. Right. Length is 4.5 centimeter and breadth is 2.6 centimeters. A door is fitted whose height is 2 meter and breadth is 1 meter. Now you have to whitewash this wall, but you need not to whitewash this area, means area of the door. आप इस एरिया को whitewash नहीं करेंगे, आपको रिमेनिंग पार्ट को whitewash करना है। अब whitewash करने की कॉस्ट क्या आएगी? आपको कॉस्ट का रेट भी गिवन है, that is ₹20 per meter square, means 1 meter की कॉस्ट आती है ₹20, तो रिमेनिंग पार्ट पे कितनी कॉस्ट आएगी वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्ट की कॉस्ट निकालेंगे। हमने पूरा कंप्लीट एरिया निकाला, that is 16.2 meter square, हमने डोर का एरिया निकाला, that is 2 meter square, हमने रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकाला। area of the remaining part is equal to whitewash is 16.2 minus 2 means 14.2 meter square. Now unitary method लगने वाला है, unitary method the cost of whitewashing 1 meter square is equal to 20 rupees and cost of whitewashing 14.2 meter square is आप इसको multiply कीजिए, you will get 284 rupees. That is your question. Got it? Okay, now we will discuss the next question. That is ninth question. That was this was the eighth question. Now ninth question is a rectangular path is 45 meter long and 30 meter wide. A path 2.5 meter is constructed outside the path. एक पाथ बनाना है, आपको एक दिया हुआ रेक्टेंगुलर पाथ दिया हुआ है, इस तरह से रेक्टेंगुलर पाथ आपको गिवन है, इसकी लेंथ is 45 meter and breadth is 30 meter. A path 2.5 meter wide is constructed outside the path. You have to make a path. एक आपको पाथ बना देना है, ये पाथ आपका है, ये पाथ का और ये आपका पाथ है, और इस पाथ की जो आपकी ब्रेथ लेंथ इज 2.5, यहाँ से भी 2.5 है, हर एक पॉइंट से भी दिस वन इज 2.5 एंड दिस वन इज आल्सो 2.5, यहाँ से भी 2.5 और ये वाली 2.5. We are discussing question number 9. Okay. Outside the park, इस पार्क के आगे तो पार्क बना देते हैं आपको, ये आपका पार्क, ये रेक्टेंगुलर पार्क हमने सेट पॉसिबिलिटी है, इस रेक्टेंगुलर पार्क के आउटसाइड में पार्क बनाएंगे, ये चारों तरफ से, इसकी 2.5 width. You have to find the area of the path. इस पाथ का एरिया निकालना है। दो रेक्टेंगल क्लियरली नजर आ रही है, एक बड़े वाली रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल और एक अंदर छोटे वाली रेक्टेंगल नजर आ रही है। अगर आप बड़े वाले रेक्टेंगल से छोटे वाले रेक्टेंगल माइनस करते हैं, then you will get area of your
That is 30 meter. Area will be area कौन सी का area है? Park area. Area of park. That is 45 into 30. Multiply कीजिएगा 135 meter square. 1350 मीटर स्क्वायर। अब बड़े वाले रेक्टेंगल आपके पास बड़े वाले रेक्टेंगल में कैपिटल एन क्या है? ध्यान से देखिए 45 ये वाली साइड है 45 में 2.5 इधर है और 2.5 इधर है तो आपको बड़े वाले रेक्टेंगल इज 45 plus 2.5 plus 2.5 you will get 50 meter। लेंथ क्या हो जाएगी आपकी 50 meter। Now breadth क्या होगा? फिर 30 meter ही है 2.5 इधर 2.5 इधर 30 plus 2.5 plus 2.5 that is 35 meter। ये आपकी breadth है। This one is length, this one is breadth। अब एक निकाल लीजिए area of big rectangle। इस बिग रेक्टेंगल में ध्यान रखिए आपको पार्क भी इंक्लूड है पार्क और ये पार्क दोनों इंक्लूड है। मैं इसको लिखता हूं पार्क प्लस पार्क दोनों ये इंक्लूड है इसके। तो दैट विल बी कैपिटल एन इनटू कैपिटल बी इज 50 इनटू 35। अब इसको मल्टीप्लाई करना एंड यू विल गेट 1750 मीटर। अब आपको पार्क का एरिया निकालना है। पाथ का एरिया कैसे निकालोगे? इस पाथ का एरिया आप बड़े वाले रेक्टेंगल से छोटे वाले रेक्टेंगल माइनस कर दीजिए। एरिया ऑफ पाथ एरिया ऑफ पाथ will be equal to area of big rectangle that is 1750 meter square minus 135 meter square। अब इसको माइनस करके आप कैलकुलेट कीजिएगा। What do you get here? 400 meters square। Area of पार्क क्या होगा? 400 meters square और ये काम है। Let's do it। Got it? Okay, students, I am repeating this question again. This is perimeter and area, 9th question. And 9th question आपको क्या कहना है? आपको एक पार्क गिवन था। Path length is 45 meter and breadth is 30 meter। इस पाथ के चारों तरफ एक पाथ बनाते हैं, ऐसे पाथ बनाते हैं और ये पाथ की जो width है that is 2.5 मीटर। यहाँ से भी 2.5 और यहाँ से भी 2.5, हर एक पॉइंट से 2.5। अब इसमें क्लियरली आपको दो तरह के रेक्टेंगल नजर आ रहे हैं। एक छोटे वाले रेक्टेंगल नजर आ रही है स्टार्टिंग में पाथ के था, एक बड़े वाले रेक्टेंगल। आपको पाथ का एरिया निकालना तो क्या करें? बड़े वाले रेक्टेंगल से छोटे वाले रेक्टेंगल को माइनस करें। बड़े वाले से पहले आपने पाथ का एरिया निकालना, जो पाथ का एरिया निकलेगा दैट विल बी छोटे वाले रेक्टेंगल, वो आपकी स्मॉल रेक्टेंगल लेंथ है। तो लेंथ आपने लेंथ इनटू ब्रेड्थ की या आपने एरिया निकाला। अब आप बड़े वाले रेक्टेंगल एरिया निकालना चाहते हो, उसके लिए आपने लेंथ और ब्रेड्थ L क्या आएगा 45 और लेंथ इसकी छोटे वाले की 45 यहां तक की गिवन थी 2.5 इधर है मैं 2.5 इधर, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका लेंथ 50 बनेगी और ये 35। अब आपको एक बी रेक्टेंगल हमने डायग्राम में लिखा भी है बी रेक्टेंगल इज एरिया ऑफ पार्क प्लस पाथ। इसमें इस पार्क का एरिया कितना होगा? पाथ का एरिया। अगर आंसर तो आपको क्या चाहिए? पाथ का एरिया चाहिए। तो पाथ का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे? कंप्लीट एरिया में से आप माइनस कर देंगे स्मॉल रेक्टेंगल, दैट इज 400 मीटर। गॉट इट? नोट कर लीजिए। देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
यस, ये सुरेश सर, ये ठीक चल रहा है ना? ओके स्टूडेंट्स, note down this question and next we will discuss 10 questions. Question number 10. A carpet of size 5 meter has 25 centimeter wide red carpet. Wide red borders. The inner part of the carpet is blue in color. आपको जैसे आपको एक कार्पेट लेंथ की बात करें तो 5 मीटर गिवन है। इस 5 मीटर को आप एक तरह से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। तो ब्रेड इज 2 मीटर। लेकिन इसका बॉर्डर है, बॉर्डर है 25 सेंटीमीटर का बॉर्डर है इस तरह से। बिल्कुल बारीक से ये बॉर्डर है। ये बॉर्डर आपका रेड कलर का बॉर्डर, यहाँ रेड कलर अंदर आपको ब्लू कलर की। और जो ये रेड कलर का बॉर्डर है ना, यहाँ पे ये रेड कलर का बॉर्डर है वो 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। तो 25 इधर है, 25 भी इधर है एंड 25 सेंटीमीटर। ये बॉर्डर की लेंथ है वो सेंटीमीटर में गिवन है, लेकिन जो हमारे पूरे कार्पेट की जो लेंथ ऑफ ब्रेड्थ है वो 5 मीटर and 2 meter. First of all, inner part of the carpet is blue in color. Find the area of the blue portion. आपको blue portion का area निकालना है। इस ये वाला बिल्कुल सेम वही लॉजिक आ रहा है दूसरे क्वेश्चन की तरह। आपको वैसे दो रेक्टेंगल नजर आ रहे हैं, एक बड़े वाले रेक्टेंगल और एक छोटे वाले रेक्टेंगल। अभी हमें क्या करना है, हमें ब्लू पार्ट का एरिया निकालना है। तो ब्लू पार्ट कौन सी रेक्टेंगल है, छोटे वाले रेक्टेंगल। तो बड़े वाले रेक्टेंगल में क्या करें, पहले बड़े वाले रेक्टेंगल की एल that is 5 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने वाले हो तो 1 मीटर। अब जानते हो ना, यहाँ पे लिखोगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर का सेंटीमीटर में होता है 5 मीटर सेंटीमीटर। that is 2 मीटर means 200 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको पहले इनर पार्ट का एरिया निकालना है। तो इनर पार्ट जो ब्लू कलर है, बॉर्डर तो आपको व्हाइट दिख रहा है, एक्चुअली ये ब्लू दिखता है, तो ये ब्लू कलर का आपको निकालना है। एरिया फाइंड आउट करना है। और ब्लू कलर छोटे वाले निकालना है। अभी छोटे वाले के लिए कैसे है, 500 तो बड़े वाली देखती है, यहां से लेके यहां तक 500 है और ये 200 है। इसमें से 25 सेंटीमीटर ऊपर से कट जाना है और 25 नीचे से कट जाना है। अंदर जो लेंथ बचने वाली है ये, तो जो ब्रेड्थ की बात करें स्मॉल बी, तो 200 में से 25 तो ब्रेड्थ की बात करें 150 सेंटीमीटर। ये आपकी ब्रेड्थ है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेंथ क्या होगी, द सेम में लेंथ आपकी 500 मीटर है, 25 इस साइड से है और 25 इस साइड से, तो बाकी बीच में कैसे निकालेंगे।
वो 500 इसमें माइनस कर दीजिए आप 25 माइनस 20 this will be 25 minus 25 and use that 450 okay now area of this one will be blue part means some छोटी अंदर की तीन के अंदर की rectangle हो जाएगा और उसकी रेजिस्टेंस बोला है means 450 into 150 and इसको कैलकुलेट मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 450 and 150 675 0 अगर आप मीटर में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप जैसा मैंने आपको बताया अभी कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 के ऊपर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं फिर 10,000 नीचे चला जाएगा 10,000 मीटर इस तरह से कन्वर्जन होता है तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे लिख सकते हो 6750 डिवाइडेड बाय 10,000 मीटर 6.75 meters. This is the area of the blue part. ऊपर इस मेथड पे लगाया है तो आप इस तरह से इसमें लगा सकते हैं 32500 divided by 10 cancel होगी 3.25 meters this will be in meters okay ये आपका एरिया आ जाएगा अब इसमें आपको रेशियो भी निकालनी है रेड पोर्शन टू द ब्लू पोर्शन जो ये रेड का एरिया निकला है ना ये मतलब और ब्लू का जो निकला इनकी रेशियो भी निकालनी है इसकी और इसकी वो रेशियो वाला पार्ट हम नेक्स्ट करने वाले हैं इसके बाद रेशियो वाला यहाँ पे करते हैं रेशियो हमेशा क्या होता है कि दो नंबर्स का डिवीजन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है अभी हम इसको रेशियो निकालने वाले हैं उसमें लिखा है रेड पार्ट और ब्लू पार्ट रेड पार्ट को किया और ब्लू पार्ट हम नीचे रखें 67500 कट कर दीजिए इसको उसके बाद इसको कट करेंगे तो ये ऊपर 30 नीचे 27 या इसमें वैल्यू आएगी रेशियो 20 आप इसको कट कर सकते हैं तो very good 27 उसको क्या तो ये यहाँ से कंप्लीट हो जाता है आपका 10th क्वेश्चन आपका क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये Next we will discuss next question. ये रेशियो वाला कंप्लीट कर लेना इसको डिवाइड कर लेना 1/3 वैसे आपको पीडीएफ की फॉर्म में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा अभी आप इसको ध्यान से समझते रहिए समझने में फोकस कीजिए पीडीएफ आपको क्वेश्चंस की मिलती रहेगी जैसे एक्सरसाइज कंप्लीट होगी या 10 वाला क्वेश्चन जैसे आज हो जाएंगे आपको तो उसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 11 क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1
11th क्वेश्चन। अब 11th क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। A veranda of a width 2.5 meter is constructed all along outside the room, which is 5.5 meter long and 4 meter wide. Find the area of the veranda. अब ये बिल्कुल सेम लॉजिक की तरह चलने वाला है क्वेश्चन। आपका एक रूम गिवन है जिसकी रूम की लेंथ है 5.5 एंड ब्रेड्थ इज 4 मीटर। इससे बने हुए हैं और ये रूम इसके चारों तरफ एक वरांडा है। जैसे आपको रूम गिवन है, ये आपका वरांडा है। रूम की लेंथ है 5.5 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 4 मीटर। इसके चारों तरफ वरांडा बना है जिसकी विड्थ है 2.25। ये विड्थ है 2.25, दिस वन इज 2.25। ओके, अब इसमें भी बड़ा एक सिस्टम आने वाला है कि आपको दो रेक्टेंगल नजर आ रही है। एक अंदर वाली रेक्टेंगल है जिसमें रूम लिखा हुआ है, एक बड़े वाले रेक्टेंगल है जो कि आपकी वरांडा और रूम दोनों को कवर करती है। तो आपको फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ वरांडा निकालना है। तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले अंदर वाली रूम की है उसको स्मॉल एल से करते हैं 5.5 मीटर, ब्रेड्थ इज 4 मीटर। एरिया ऑफ निकाल दीजिए इसका, एरिया ऑफ रूम दैट इज L into B 5.5 into 4 या आ जाएगा आपका 55/10 into 4 that is 22 meters square। ये आपका एक रूम है। अब एरिया हेलो कृष्ण सर, जी सर, लास्ट के 6 मिनट बचे हुए हैं। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो पूछना हो, ठीक है जी? यस ओके सर, आप ओके फॉलो कर दीजिए। ये स्टूडेंट्स कोई डाउट है आपको? रेज योर हैंड। किसी बच्चे को कोई डाउट है? हेलो कृष्ण सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओके सर, हाँ जी, हो गए। आप किसी बच्चे को जो भी क्वेश्चन है, रेज हैंड, हाथ खड़ा करे। जिस बच्चे को कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो। डियर स्टूडेंट्स, if you have any doubt you can raise your hands। Yes, any student? लगता है सर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आप ओके सर। हाँ जी, तो मीटिंग एंड करें क्या? ओके सर, टाइम हो गया तो फिर उस हिसाब से एंड करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आप यहीं पे कर रहे हैं, इसको पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये कंप्लीट आपको फेयर नोटबुक में बनानी है, फेयर नोटबुक आपकी चेक भी होगी कुछ टाइम के बाद जब भी स्कूल आपके रेगुलर होंगे।
और ये आप सारे क्वेश्चन आप करते रहिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।